Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. On behalf of the Islamabad Policy Institute, I formally welcome you all to IPI's Economic Policy Series webinar titled Growth and Sustainability Hand in Hand or Poles Apart. The subject is of paramount importance as far as its relevance to Pakistan's present foreign policy is concerned. We will, in the webinar, try to examine how enduring is Pakistan's economic growth and what important steps are needed to put it in the right direction for sustainable economic development. The event will bring together perspectives from experts to evaluate Pakistan's economic policies. Speakers will make actionable recommendations for the government. With this brief introduction, I will request Executive Director of Islamabad Policy Institute, Professor Syed Sajjad Bukhari, to deliver his welcome and introductory remarks. Professor Syed Sajjad Bukhari is the founder of Islamabad Policy Institute. He is currently leading IPI as its Executive Director. Over to you, sir. Dr. Hafiz Pasha, former Finance Minister, Syed Shabar Zadi, former Chairman FBR, Syed Hussain Haider, Senior Fellow IPI. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to welcome you to today's webinar on Pakistan economy and its future direction. This is part of public policy series being run by Islamabad Policy Institute. I'm grateful to both Dr. Pasha and Syed Shabar Zadi for taking time out of their busy schedules to join today's webinar, and also for the valuable contributions they will be making to the discussion. I commend IPI team for organizing yet another timely event on an important topic that affects the lives of Pakistanis. Ladies and gentlemen, when we entered the new millennium, Pakistan GDP per capita was higher than its regional neighbors, India and Bangladesh. But now Pakistan has fallen behind its regional peers. Myriad internal and external challenges, volatile political and security situation, and fraud regional environment are generally blamed for this decline. It is, however, absence of policy consistency and endemic political instability which continue to stymie effort for building strong foundation for sustainable economic growth and development. For Pakistan leaders, civil or military, government or opposition, focus needs to be meeting ambitions and aspirations of the youth, to create an enabling environment for generating millions of well-paying jobs that expand purchasing power of the citizenry and improves quality of life should be the ultimate goals. Pakistanis have suffered a sustained decline in their purchasing power, and job losses have increased in the past few years. Borrowing by the successive governments has reduced productivity of the economy.
and now focuses on to make both ends meet. This is not sustainable in the long run. In addition, the boom-bust cycle of economic growth and contraction create conditions that foster lingering instability. Ladies and gentlemen, in this comes the focus of today's webinar, growth and sustainability. How to achieve growth and make it sustainable. The short and easy answer is reforms. We have heard of reforms in the past. Our political leaders have said many times that Pakistan needs economic reforms on urgent basis. But question is, why have not reforms been successful? Are our leaders capable of undertaking deep-rooted reforms that stir the political economy of this country? I look forward to hearing thoughts of our esteemed panelists on these issues. I thank you. Thank you very much, sir, for your welcome remarks. Now I would like to introduce our worthy guests to today's webinar. Our moderator for today's event is Syed Hussain Haider Sahib. Mr. Haider is an equity market veteran with more than 20 years of experience in the field of investment management in both Pakistan and abroad. He is a senior fellow with Islamabad Policy Institute. Then moving to the brief introductions of our worthy speakers who don't need, in my opinion, any introduction, but still, since it is our tradition to introduce our speakers. So our first distinguished speaker is Dr. Hafiz A. Pasha, who is a former Federal Minister for Finance and Economic Affairs. From 2001 to 2007, Dr. Pasha was UN Assistant Secretary General and Director of the Regional Bureau for Asia and the Pacific of UNDP. He has published over 150 books and articles in the fields of governance, public finance, urban and regional economics, poverty and social development, industry, and energy economics. Our second speaker for the event is Syed Muhammad Shabar Zaidi. He has been the president of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan 2006 and South Asian Federation of Accountants 2008. Mr. Zaidi has been a member of Developing Nations Committee of International Federation of Accountants, New York, USA. He has also been director of Karachi Stock Exchange from 2012 to 2015 and has served as chairman FBR. He has also rendered his services as caretaker provincial minister of Sindh for Finance, Revenue, and Excise and Taxation during the caretaker regime in 2013. He has also authored many notable books. With this brief introduction, now I would like to hand over the session to our moderator, Syed Hussain Haider Sahib. Over to you, sir. Assalamu alaikum. Shukriya, Mubin. Thank you, Sajjad Sahab, for your opening remarks. Dr. Hafiz Pasha, Shabar Zaidi Sahab, and all the participants, a very warm welcome. प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो हम डिस्कस किए लेते हैं। फिर मौजू जो है नहायत वसी है और हर चीज़ गो के काफ़ी इंटरकनेक्टेड है और हमें दरअसल दरिए को कूजे में बंद करना है। तो गौर व फिक्र के बाद हमने बेसिकली 5 सेगमेंट्स पे हमने इस मौजू को तरतीब दिया है ताकि एक जामे बात सामने आ सके। और इस प्रोग्राम में हमने बिलखुसूस जो अगला साल या इनफैक्ट जो साल अब शुरू हो चुका है 2022 के जो टारगेट्स हैं या उसके हवाले से जो मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस हैं उससे थोड़ा हट के हमें जो सूरत हाल है उसका ज़रा मजमूई ओवरऑल ज़रा जायज़ा लेना है मुस्तक़बिल के लिए कि सिम्त की बात दरअसल हम इस प्रोग्राम में करना चाहें। तो जो 5 सेगमेंट्स का जैसे मैंने आपको जिक्र किया तो 15 मिनट जो है हम हर सेगमेंट पे अपनी गुफ्तगू को मुहित रखने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम का मुकम्मल दौरानिया जो है 75 से 80 मिनट रखने का हमारा हदफ है। मैंने गुफ्तगू महज इंतहाई मुख्तसर अंदाज में
इनिशिएट करनी है, एंड देन आई विल allow the two distinguished speakers to enlighten us with their expert views. तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किए लेते हैं। तो देखिए, पहले सेगमेंट में सबसे जो एक मामला है वो जो हमें दरपेश है वो ये है कि शब इजरा भी रोज़े बद की तरह कट तो जाती है पर गुजरती नहीं। अब यही हालात जो हैं हमारे, आप समझिए कि जो मईशत की रफ्तार का जो एक ख़ास ट्रेंड बन चुका हुआ है उसका भी है। और इस हवाले से 2019 में एक एशियन डेवलपमेंट बैंक की वर्किंग पेपर शाया हुआ था, जिसकी जो टाइटल था वो गालिबन जो था वो ये था कि जी वाई पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंस्ट्रेंट। और उसमें एक मुख्तसर सा कुछ लाइंस हैं जो मैं पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ ताकि हमारी डिस्कशन हवाले से एक सेट हो सके। The periods of GDP growth rates that are higher than the balance of payments constrained growth rate tend to result in foreign exchange reserve depletion, followed by periods of fiscal and monetary policy-led suppressed growth. अब ये दरअसल जो किस्सा है, अगर आप गौर करें तो जुबान ज़द-ए-आम हो चुका हुआ है और जिस पे काफ़ी बातें होती हैं, और मेरे ख्याल से एक खुशाइन बात है ये कि एटलीस्ट हमें जो मामला है उसकी निशानदेही अब हो रही है और उस हवाले से आगाही काफ़ी हो रही है। तो पहले सेगमेंट में जो मेरे ख्याल से हमें मौजू इस वक्त हम चाहेंगे कि हम दोनों एक्सपर्ट से ज़रा इस हवाले से डिस्कस करें कि जो रेट हमारी इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है उसकी क्वालिटी को किस तरह से हम आप लोग देख रहे हैं, और डू यू सी एनी साइंस ऑफ पैराडाइम शिफ्ट दैट कैन इंडिकेट सस्टेनेबल ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। सो इन अदर वर्ड्स, जैसा कि हमारा मौजू है ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, so we would want to see whether these two variables are going hand in hand or they are still poles apart. और इसमें दो तीन बस मुख्तसर मैं अगर चीज़ों का अगर जायजा लूँ तो उसमें आप देखिए कि एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ पे बेपनाह चर्चा हो रहा है, और जिस पे हम आगे भी हमारा एक पूरा सेगमेंट भी उस पर रखते हैं अभी। इसके अलावा सीपैक के हवाले से आप देखें कि कुछ दहाइयों पहले मेरे ख्याल से जो अपॉर्चुनिटी शायद साउथ कोरिया जैसी मईशत को हासिल थी जब जापान तरक्की कर रहा था, या आप मिसाल ले लीजिए मैक्सिको की कि जब यूएस के टाइम पे जब इनसे मुआहदे हो रहे थे, तो जो तरक्की के मौके इनको हासिल थे वो हमें शायद गालिबन अभी हासिल है, और सीपैक उसके हवाले से एक बेहतरीन हमें मौका फराहम कर रहा है। बट इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं विच हैव गॉन अनमेंशन्ड। अब जिसपे मिसाल के तौर पे एक मासूमाना ख्याल जो मेरे हमेशा जहन में आता है वो ये आता है कि अभी जैसे बजट पे बात होती है और काफ़ी सारे मौज़ूआत पे हम लोग उस हवाले से रिगड़ के कर रहे होते हैं, और एक चीज़ जो रह जाती है वो ये कि जो पॉपुलेशन का जो हमारे डायनेमिक्स हैं कि हर 25-30 साल में हमारी आबादी डबल हो रही है, यानी कि जो ग्रोथ रेट का अगर आप नंबर्स देखें तो ऐसा ही कुछ मामला है। और गालिबन आई थिंक आगे यहाँ से 15-20 सालों में शायद हमारी आबादी गालिबन यहाँ से भी शायद जो लास्ट सेंसस 99 का आया था और वहाँ जो नंबर 134 मिलियन की हमारी आबादी थी, वहाँ से हम डबल कर देंगे 270 अरब के करीब। तो ये चीज़ मतलब हमारे हवाले से बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हो रही होती है किसी भी मौशी डिस्कशन में कि क्या ये मतलब एक बढ़ती हुई आबादी के हवाले से जो चैलेंज है ये किस तरह से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। और दूसरा रिग्रेसिव टैक्सेशन एक मामला है जो कि मेरी समझ से बालातर है कि जो मेरे ख्याल से कभी भी इवन एट दिस बजट भी उस तरह से एड्रेस नहीं कर सका है। और इनफैक्ट ऑन अ लाइटर नोट में अक्सर एक जगह हमारी बात हो रही थी तो मैंने जिक्र किया कि जो टैक्स कलेक्शन एफबीआर की बताई जा रही है तो उसमें जो रुपी का हमारे यहाँ मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टॉक मार्केट में डिस्कशन हो रहा होता है तो उस पर ध्यान जो है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रुपी डेप्रिशिएट सेट कर जाए, जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुई हैं एफबीआर के टैक्स कलेक्शन। तो बहरहाल ये कुछ दो चार चीज़ें थी तो मैं दोनों हमारे एक्सपर्ट्स के हवाले से सामने रखना चाह रहा था। एंड आई वुड वांट डॉक्टर हफीज पाशा टू ओपन द डिस्कशन, और जैसे मैंने जिक्र किया कि 15 मिनट हम कोशिश करेंगे कि हर सेक्शन पे हम कंक्लूड कर सकें ओवरऑल मजमूई। जी डॉक्टर साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much for your elaborate introduction. Let me also thank the Executive Director of the Islamabad Policy Institute for having started this wonderful process of discussions on, particularly nowadays, on webinar. And as always, I'm extremely happy that my very esteemed colleague Shabbir Zaidi is going to be exchanging ideas with all of you. The question that has been raised is the issue of quality of growth. Let me start by saying that to me, one of the most important dimensions of growth
is whether it benefits people at large. Does it lead to some improvement in the distribution of wealth and income, or does it perpetuate and even increase inequality? It's very interesting that over the last many decades, we have had high growth in what I would call even decades, which is basically 60s, 80s, and the first decade of the 2000s. These 3 decades interestingly coincided with authoritarian governments who managed to establish a client-state relationship with superpowers, and as a result of which you'll be surprised to know that in the Ayub Khan period, foreign aid was 12% of the GDP. I mean, if you get that high foreign support, you're bound to grow fast. Similarly, in the Ziaul Haq period, we saw the relationship with the US in the context of Afghanistan, and this continued, of course, with the Musharraf period, and I'm extremely glad that our honorable civilian prime minister does not want to emulate the same model of external support based on becoming a client state. Now, what happened in these 3 epochs of high growth? We saw a very sharp increase in inequality, perhaps the most pronounced in the Ayub Khan era, where as a result of high growth in the western wing of the country, the disparity in between the 2 wings really mushroomed and eventually was the cause of the breakup of Pakistan. The second factor which we need to consider was that we saw the emergence during the Ayub Khan period of the so-called 22 families. These families had preempted a very large share of the national wealth and had built a kind of a horizontally and vertically integrated network between the financial system, the banks, and industry. And unfortunately or fortunately, years later, we had to nationalize the banking system to break this link. So the first and fundamental issue is wonderful. We should have high growth, but it should be growth which is distributed and is evenly available and certainly contributes to bringing down poverty in a big way. So this is my first point. Turning to the paradigm shift issue, you see, one very good concept which has been given by the government in this budget is the concept of so-called bottom-up growth. This is in contrast to the conventional growth model, which has a trickle-down effect as the ultimate impact on the relatively poor sections of society. The rich benefit first, then it filters down to the poor. So this new concept of bottom-up growth is, I think, is a very good concept, and I hope that this will lead to a combination of growth with reduction in inequality. The primary instrument that the government wants to use for achieving bottom-up growth is through a horizontal, massive expansion of small-scale credit to poor families and small farmers and for housing purposes. Now, I would be the happiest person if our commercial banks finally realize that small borrowers do exist in this world. They have been thoroughly spoiled, either dealing with government, buying government paper and generating risk-free returns, or dealing with a clientele which is at best 1 to 2% of the potential borrowers. So that is a good model, and I hope it succeeds. And my last point is a subtle change in the growth strategy sectorally. Yes, the government is talking about agriculture, the government is talking about industry, but there is a subtle change which I've seen in the last 2-3 years in the thinking, and that is that very interestingly, the government wants to use the housing sector and the construction sector as the leading sector for growth. This is actually very contrary to the historical experience with business cycles. Housing sector usually follows the business cycle, does not lead the business cycle. And it's very interesting that our Prime Minister
thinks that it could, because it is extremely labor intensive, it has strong backward linkages with multitude of industries, it creates a lot of jobs, and of course it will improve the shelter position for the relatively poor segments of the population. My own view is yes, but this is a non-tradable sector, and eventually you will have to focus on what I would consider the true model of growth, which is the export-led growth story. So these are my initial remarks. Thank you. Thank you, Dr. Saab, for your comments. जी शबद अजीज साहब, आपके ख्याल में एक्सरे रिपोर्ट जो है हमारी वो क्या बता रही है? Bismillahirrahmanirrahim. Firstly, I thank Islamabad Policy Institute for inviting me, and it's a real honor for me to sit along with Dr. Rafiq Pasha, because I feel that one of the brilliant minds in Pakistan who produced the last is Dr. Saab, and I'm really impressed with his very clear concepts. I would like to just add on what Dr. Saab जो बात कर रहे थे कि हमारी जितनी भी ग्रोथ के पैटर्न्स रहे हैं वो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशनल इक्विटी को के कॉन्सेप्ट को फिट नहीं कर सके। मतलब यूं कि हमारी अल्टीमेटली उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुई है और वो मासेस में ट्रांसलेट नहीं हुए, और उसकी वजह से जो हमारे जो प्रॉब्लम्स बढ़े हैं, मैं इसको ना डायरेक्टली रिलेट करता हूँ अवर टैक्सेशन सिस्टम के साथ कि मेरा ये व्यू है कि अगर आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी से, जो कि जिसको हम अडॉप्ट कर चुके हैं, अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी से दो चीजें निकाल दें, एक टैक्स कलेक्शन और एक गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, तो फिर तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक अजाब बन जाती है। क्योंकि जब आप वेल्थ अर्न कर रहे हैं और उसमें से सोसाइटी को शेयर नहीं दे रहे, और अगर सोसाइटी को शेयर दे भी रहे हैं और वो सोसाइटी के मासेस को ट्रांसलेट नहीं हो रहा, तो फिर आपका सोसाइटी जो है वो क्लैप्स हो जाता है। तो पाकिस्तान का मेरे हिसाब से जो बुनियादी मसला है वो ये है कि अगर हम ग्रोथ पैटर्न अगर 4 या 5 या 6 या 7 जितना भी रखते हैं, उस ग्रोथ पैटर्न का जो ट्रांसलेशन है टू दी ओवरऑल सोसाइटी वो नहीं हो पाता है। तो वो जो हमने उस सिस्टम को जो हमने खराब किया हुआ है, वो सिस्टम हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दूसरी बात जो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो ग्रोथ पैटर्न हमें नजर आ रहा है, मैं इसको बड़ा कैंडिडली ये कहना चाहता हूं कि वो आई वुड से कि ये एक फ्लोटिंग है, मींस इसके अंदर डेप्थ नहीं है। डेप्थ का मतलब ये कि मैं अगर आपको कोई एज्यूम करे कि हम एग्रीकल्चर में एक सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकेंगे फॉर आर्गुमेंट सेक, तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम एग्रीकल्चर में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करें, वाटर में, क्रॉप में, सीड्स में। अच्छा, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से आएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे फंडामेंटल ग्रोथ के इंजन्स हैं, फॉर आर्गुमेंट से एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, आपका और फैक्टर जो है जो मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कहीं पे तो जगह है, बट जनरली मैं एज ए बिल्कुल कमर्शियल एंड अकाउंटेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा उसके अंदर ग्रोथ पैटर्न नजर नहीं आ रहा है कि वो मैं उस ग्रोथ को, मैं एग्रीकल्चर को अगर गवर्नमेंट फुल कंसंट्रेशन भी कर दे कल से एग्रीकल्चर के ऊपर और अपनी तमाम कोशिशें भी कर दे, तो क्या गवर्नमेंट के पास इतना पोटेंशियल है कि वो एग्रीकल्चर को एक सस्टेनेबल ग्रोथ दे सके आज की पोजीशन में? तो मेरा सिर्फ कंक्लूजन ये है कि ये जो ग्रोथ पैटर्न है पाकिस्तान का, इसके लिए हमें पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। और मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि मुझे वो पैराडाइम शिफ्ट तकरीबन आप मैं कहना चाहता हूँ कि वो तकरीबन मुझे कोई 20 साल से नजर नहीं आ रहा है। हम वही करते जा रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हमें सूट करता है, और वो हम करते। लास्टली बात जो मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि अगर हम सेक्टोरल डेवलपमेंट लाइक कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा ग्रोथ पैटर्न इंप्रूव हो जाएगा, तो वो ठीक है, उसको कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट आ जाएगा,
मगर वो भी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। और उसमें सबसे ज्यादा मुझे जो मैं तो उस चीज में इन्वॉल्व रहा हूँ, मेरा सबसे ज्यादा मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट देखे हैं जो आए हैं, जो रजिस्टर किए गए हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा है जो गरीब आदमी के लिए। तो क्वेश्चन अगेन फिर कि अगर आपने हाउसिंग अमीर आदमी के लिए प्रोवाइड करनी है तो वो तो एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी हो जाता है, वो आपका नेशनल ग्रोथ पैटर्न या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पब्लिक इन जनरल नहीं आएगा। अभी तक आपने 450 के करीब तकरीबन प्रोजेक्ट रजिस्टर कराए। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें एक प्रोजेक्ट भी ऐसा है जो लो कॉस्ट हाउसिंग के बारे में है। तो अगर लो कॉस्ट हाउसिंग को आप नहीं टैकल कर पा रहे तो ठीक है, वो एक सर्टन सेक्टर आएगा, एक अमीरों के लिए इन्वेस्टमेंट का बनेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, मगर जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान का वो पूरा नहीं होगा। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ये मुझे नजर नहीं आ रही। और ये मेरा अपना ख्याल है, मैं इसमें एक सिर्फ जस्ट ऐड करना चाहता हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक पॉलिसी में और जो लोग इकोनॉमिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, आई वुड वेरी कैंडिडली से प्राइम मिनिस्टर, उनके दरमियान में एक डिस्कनेक्ट पैदा कर दिया जाता है। मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कह रहा हूं, पैदा कर दिया जाता है बाय कंफ्यूजिंग देम इन डिटेल्स। आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात करते हैं कि जो डिसीजन मेकर है उसको समझ ही नहीं आती कि उसे करना क्या है। वो कहते हैं यार जो आपको समझ आए वो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया शफर ज़ैदी साहब, एंड थैंक यू बोथ फॉर सच अ कैंडिड डिस्कशन। आई थिंक जो की टेक अवे इस सेगमेंट का अगर हम देखें तो हमारे दोनों गेस्ट ने मुख्तसर जिस तरफ इशारा किया है वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बुनियादी बात यह है कि अगर आम इंसान तक किसी भी मौशी पॉलिसी का फायदा नहीं पहुंच रहा है तो वो मौशी पॉलिसी किसी काम की नहीं। बहुत अच्छी बात हो गई। अब इसमें अगर हम इसी डिस्कशन को दूसरे सेगमेंट में थोड़ा मैं चाहूंगा इसको हम फर्दर एक्सपैंड करें और हम थोड़ी सी बात करें आगे की। अभी तो हमने जैसे मैं जिक्र कर रहा था एक्सरे रिपोर्ट का, हमने जरा जायजा ले लिया कि क्या हालात हैं और बहुत आपने उम्दा तरीके से जो हमारे इस वक्त क्रिटिकल जो मामला हैं उस तरफ इशारा किया। अब इसमें मेरी ख्वाहिश ये कि इस सेगमेंट में हम थोड़ा सा ये देखें कि सर नेक्स्ट से नॉट जस्ट लाइक 2 और 3 इयर्स, लॉन्ग टर्म के एंगल से पाकिस्तानी मईशत की या जो हमारा माशाल्लाह हजम हो गया है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप पॉपुलेशन देखें स्पेसिफिकली, तो उस हवाले से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए? 3.5% या 2.5% या 2.4 या व्हाटएवर स्पेसिफिक नंबर दैट इज शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जी उस सालाना तो हमारी इतनी तो आबादी में इजाफा हो रहा है। और मैं दोबारा उसी तरफ ले जाना चाहूंगा कि जो अर्बन प्लानिंग के हालात हमारे हैं और कराची हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे उस पॉलिसी को उसको बनाने में। तो इसी मौजू को हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं। जस्ट वांट टू हाईलाइट कि आप इस पर रोशनी डालिएगा कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं, मोटे 2 से 3, और हमारी मुआशी तरक्की की जो रफ्तार है वो क्या होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। किससे पूछ रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, आप यू कैन स्टार्ट। बीच में देयर वाज अ कट ऑफ यू सी बाय द इंटरनेट। तो अब आपने जो 2 सवाल किए हैं कि हमारा शरह नमू क्या होना चाहिए, एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी आर बैक टू आवर नेशनल लैंग्वेज। तो हमारा जो शरह नमू है वो क्या होना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या चीजें ऐसी हैं जिससे हमारा जो तरक्की का सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहे और कहीं जाके ना रुके। देखिए, हमें अगले 10-15 साल कम से कम 6 से 7% शरह नमू हासिल करना जरूरी है। उसके 3 बड़े वजूहात हैं। एक तो ये है कि जिस तरह आपने अपने आगाज में जिक्र किया कि जो आबादी की बढ़ने की रफ्तार है वो पाकिस्तान की तकरीबन दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है।
और खतरा ये है कि पॉपुलेशन डबल हो जाएगा आपके 10-11 साल में। तो साथ साथ इसके जो हमारे नौजवान हैं उनके नंबर में बड़ी तेजी से इजाफा होता रहा है। और आज आपको सुन के यकीनन कुछ परेशानी होगी कि पाकिस्तान के 60 लाख नौजवान मर्द आइडल हैं, यानी कि वो ना तो काम कर रहे हैं ना किसी तालीमी इदारा में पढ़ रहे हैं, आइडल है, आइडल यूथ। ये आइडल यूथ बिकम्स अ थ्रेट फॉर क्राइम और वायलेंस और in fact eventually for extreme totalitarianism। तो इससे आप ये देखेंगे कि खुदा न खास्ता एक माहौल अरब स्प्रिंग का भी पैदा हो सकता है पाकिस्तान में। तो सबसे पहले आपको ये 6 से 7% की ग्रोथ इसलिए जरूरी है कि रोजगार में इतनी तेजी से इजाफा हो कि जो नए नए बच्चे निकल रहे हैं और लेबर मार्केट में आना चाहते हैं उनको अब्सॉर्ब किया जाए। एक तो ये है। दूसरा, जिस तरह पहले सेशन में डिस्कशन हो चुका है कि 6 से 7% इसलिए भी जरूरी है कि हमें बेरोजगारी ओवरऑल और गुर्बत को कम करना है। और होता ये कि जब आपकी फीकस आमदनी में तकरीबन 3% इजाफा शुरू हो जाता है तो उस वक्त, और खास तौर पर अगर खाने पीने की चीजें जो हैं उनकी कीमतें मुस्तकम रहें, तो उसके नतीजे में बड़ी तेजी से गुर्बत में कमी आती है। और हमने कुछ पीरियड्स में इसे देखा है। 2014-15 से 2017-18 जब हम 5% तक पहुंचे थे और खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हो गई थी या बढ़ी नहीं थी, तो उस वक्त हमारा जो पॉवर्टी के जो लोग थे बिलो द लाइन, वो 75 मिलियन से कम होकर 60 मिलियन पे आ गए थे। अब वही नंबर 80 या 85 मिलियन तक जा चुका है। तो ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और पहले ही डिस्कशन हो चुका कि ग्रोथ ऑफ द राइट काइंड व्हिच टैकल्स इनइक्वालिटी एंड डज नॉट लीड टू मच फूड इन्फ्लेशन एंड सो ऑन। आखिरी जो वजह है हाई ग्रोथ की, देखिए पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है कि हमारे कानून मौजूद है जिसे हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट कहते हैं। उसके तहत हमारा गवर्नमेंट डेट का जो रेशियो है वो 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए हमारे कौमी आमदनी का, 60% ऑफ द जीडीपी। आज आप तकरीबन 80% तक पहुंच चुके हैं। और हो ये रहा है कि चूंकि आपका बेस जो है जीडीपी तेजी से नहीं बढ़ रहा है और आपका बजट का खसारा 8 से 9% तक जा चुका है जीडीपी का, तो ये तेजी से बढ़ रहा है। और अगर रुपए की कदर में आने वाले दिनों में फिर से कमी होना शुरू हो जाए तो खुदा न खास्ता अगले 3-4 साल में ही ये इस रफ्तार से 100% तक पहुंच सकता है। 100% ऑफ द इकोनॉमी इज इन डेट। तो लिहाजा आपको 6 से 7% ग्रोथ हासिल करना अहम इसलिए है। एक तो अपने ये आइडल यूथ को अब्सॉर्ब करें ताकि क्राइम वायलेंस कम हो, और दूसरा आप गुर्बत में खात्मी ला सकें और अपने डेट का बोझ को मैनेजेबल रखें। आखिर में मैं 3 चीजें कहता हूं जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, इन पे हम जरूर आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले बचत और इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान की एक वजह हिंदुस्तान और बांग्लादेश से आगे चलकर हम कुछ हद तक पीछे अब आ गए हैं कि उन मुल्कों में 25 से 30% है इन्वेस्टमेंट रेट, और सेविंग्स भी उसके करीब है। हमारे यहाँ मुश्किल से अच्छे सालों में ये 17 या 18 हो जाता है, और सेविंग्स रेट हमारा मुश्किल से 13 से 14% है। एक ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, जिस तरह शफर ज़ैदी ने भी कहा कि एक कैपिटलिस्ट निज़ाम में जब तक आपके पास एक मुस्तकम
और बिल्कुल फेयर टैक्सेशन सिस्टम ना हो तो इनइक्वालिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है। और मैं उनकी बातों से 100% अग्री करता हूं कि हमारा टैक्स का निजाम जो है has been subjected to what I would call elite capture। और उसके बारे में अगर आप बाद में चाहेंगे तो ये किस तरह हुआ है, क्या है, और इससे कितना प्रियम्पशन हुई है, हम बात कर लेंगे। और आखिरी में जो आप फैक्टर हर वक्त एम्फसाइज करते रहे, बरामदात बरामदात बरामदात, अगर आप अपने बरामदात नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी कौम में इस वक्त चूंकि अमीर तबका की आमदनी तेजी से बढ़ती है तो हमारी इंपोर्ट प्रोपेंसिटी जो है दरामदात की बहुत ज्यादा है। जब आमदनी मुल्क की 1% बढ़ती है तो इंपोर्ट 1.4% बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें अब एक्सपोर्ट को भी तकरीबन 2% पर यूनिट ऑफ ग्रोथ करना है, वरना ये ग्रोथ हमारा सस्टेनेबल नहीं रहता है, जिस तरह बिगिनिंग में आपने खुद कहा है। तो 3 फैक्टर्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ब्रॉड बेस्ड प्रोग्रेसिव high yielding tax revenue system, and third, export led growth leading to a manageable trade deficit. Ye 3 basic requirements, a lifeline for your country to achieve 6 to 7% sustainable growth. Thank you. Thank you, Dr. Saab, for such a comprehensive overview. जी, शब्बीर ज़ैदी साहब, देखिए, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने तकरीबन सारी बात वाज़ेह कर दी है। मैं एज ए अकाउंटेंट कुछ 2-3 फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप पिछले तकरीबन 20 साल से तकरीबन 25 साल का जीडीपी ग्रोथ का कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन का मतलब यह है कि कितनी जीडीपी ग्रोथ एग्रीकल्चर में हुई, कितनी जीडीपी ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में हुई, कितनी जीडीपी ग्रोथ होलसेल रिटेल ट्रेड में हुई, और कितनी जीडीपी ग्रोथ आपकी सर्विसेज सेक्टर में हुई। तो आप ये एनालाइज करेंगे कि आपकी जीडीपी ग्रोथ का जो पैटर्न रहा है उसमें सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ता गया है, और जो रियल इंडस्ट्रियल और आपका जो एग्रीकल्चर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, और वो शायद ही किसी ज़माने में 4 से 5 से ज़्यादा आगे बढ़ा है। अगर हम, मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट व्यू है, अगर हम ये समझते हैं कि हम 8 करोड़ मोबाइल फ़ोन बेच के हम अपना जीडीपी का ग्रोथ मैनेज करके उसको हम कर लेंगे, तो वो हमारे जैसे माशरों के लिए ठीक नहीं है। तो सवाल अब ये है कि 2 सवाल है मैं इस सवाल को 2 में डिवाइड करता हूँ कि मुझे जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चाहिए और जीडीपी ग्रोथ रेट की कंपोजिशन क्या चाहिए। मुझे जीडीपी ग्रोथ रेट में अगर मुझे सर्विस सेक्टर की मेरी मल्टीप्लायर की सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, अगर हम वो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन, तो क्या वो हम अचीव कर सकेंगे ऑब्जेक्टिव जो हमें अचीव करना है ऑब्जेक्टिव। तो पहला तो मेरा ऑब्जर्वेशन जीडीपी ग्रोथ के एस्पेक्ट से ये है कि जीडीपी ग्रोथ इन एब्सोल्यूट टर्म मेरे लिए शायद डिफरेंट मानी रखती है जो और जनरली इसको कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात ये कि हम अगेन आपने सबने जीडीपी ग्रोथ की बात की, मगर जो उसका दूसरा फैक्टर है जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसको हमने इग्नोर कर दिया। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अब हम उसको समझते हैं कि ये तो मौलवी का मसला है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल करे, हमारा इकोनॉमिक्स का मसला नहीं है। तो जब तक आप उस सेक्टर दोनों चीजों को साथ लेके नहीं चलेंगे, अगर मैं कह रहा हूँ जी मैं जीडीपी ग्रोथ को मैनेज करना चाहता हूँ इस पे, मगर मैं पॉपुलेशन वाले सब्जेक्ट को तो मैंने पार्क कर दिया, मैं तो उसको टच ही नहीं कर सकता। मुझे याद है जब मैं कंपैरेटिवली था तो आपको एक पूरा प्रोग्राम, आपका पूरा एक सिस्टम होता था पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन प्लानिंग का। तो मैं डॉक्टर साहब की बात से सिर्फ मजीद ये करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आप मौजूदगी में मैं अर्ज कर रहा था कि मुझे जीडीपी ग्रोथ मेरे लिए रेलेवेंट है, मगर मुझे जीडीपी ग्रोथ की कंपोजिशन भी बहुत रेलेवेंट है। मींस कि इसमें कितनी ग्रोथ इंडस्ट्री की है, कितनी ग्रोथ एग्रीकल्चर की है, कितनी ग्रोथ होलसेल रिटेल ट्रेड की है, कितनी ग्रोथ आपकी सर्विस सेक्टर की है। क्योंकि मेरा ये व्यू है कि हमारे जैसे माशरों में
अगर आपका एग्रीकल्चर और लार्ज स्केल और मिडिल स्केल अगर वहां पे ग्रोथ नहीं होती और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होती है, तो शायद हम वो एक्चुअल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हम आज कर सकते। और शायद हमारे 20 साल में हमसे थोड़ी गलती हुई है कि हमारा टू मच कंसंट्रेशन सर्विस सेक्टर और होलसेल रिटेल ट्रेड पर रहा है, और हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर पर वो स्ट्रेस वो कंसंट्रेशन नहीं की है जो हमें करनी चाहिए। मगर मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं कि अब हम रिवर्स साइकिल में चले गए हैं। जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था वो हमने अडॉप्ट कर लिया है, और जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ था वो इंडिया के पास चला गया है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शबर साहब। काफी हमारी फ्रूटफुल डिस्कशन आई थिंक रही, और इसमें भी आई थिंक काफी वाज़े तौर पे अगर आप देखें तो डॉक्टर साहब ने भी और शबर साहब ने भी जिस तरफ इशारा दिया है वो ना सिर्फ ग्रोथ के हदफ के हवाले से, बल्कि ग्रोथ की जो कॉम्पोजिशन होनी चाहिए उस हवाले से, और जो बाकी अहम हमारे जो ज़रूरियात हैं स्पेशली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, तो नेचुरली एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात की। वेरी गुड। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जिसपे हमारी कोशिश है कि हम ज़रा फिस्कल पॉलिसी पे बिलखुसूस ज़रा मज़ीद गहरी नज़र डालें और इस पर ज़रा खुल के बात करें कि फिस्कल पॉलिसी को किस तरह से लिंक किया जा सके जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए, और उस हवाले से नेचुरली पॉवर्टी एलिविएशन का एक जो सबसे अहम तरीन पहलू है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे हमने अभी पिछले सेगमेंट्स में डिस्कशन की है, तो उस हवाले से जो अफरात दर का मामला अभी हमें दरपेश है दोबारा हमेशा की तरह, एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का चैलेंज है, लिंगरिंग ऑन हो रही है पावर टैरिफ के हवाले से, जो अपटेक उसमें आना है, पेट्रोलियम लेवी का हमने अदब काफ़ी अच्छा खासा बड़ा रख दिया हुआ है, और फिर सब चीज़ें अगर आप वी पुट एवरीथिंग असाइड, सिर्फ डेफिसिट फाइनेंसिंग का ही देख लें तो उसमें भी एक इनहेरेंट रिस्क मौजूद है फॉर हायर मॉनेटरी एक्सपेंशन, जो कि इवेंचुअली इन्फ्लेशन को मजीद उस हवाले से इसमें तेजी ला सकती है। अब इसके बरक्स जो दूसरे पहलू है, और जो मोटी बात मैं अपने हवाले से कहना चाहूँगा, वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप जो दो बुनियादी हमारे सेक्टर्स जो होने चाहिए पाकिस्तानी ऐसे मईशत के और बढ़ती हुई आबादी जैसे हमारी है, एजुकेशन और हेल्थ की, उसके हवाले से एक आम तासुर गालिबन ये पैदा हो चुका हुआ है कि ये या तो हुकूमत बरी जमा हो चुकी है अपनी जिम्मेदारी से, और ये शायद आई डोंट नो या तो प्राइवेट सेक्टर का रोल है, ऑल्दो इस हुकूमत में जो है वो काफ़ी एटलीस्ट कुछ सिग्निफिकेंट इंक्लिनेशन नज़र आ रही है हमें हेल्थ सेक्टर की तरफ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है वो एजुकेशन की तरफ भी आएगी। मगर इसमें चैलेंज वही है कि अगर हम टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लेड उसकी तरफ चीज़ें जाते हैं और अपग्रेड करते हैं एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, माइनिंग को, तो उसमें चैलेंज ये आ जाएगा कि जी बहुत सारी नौकरियां जो हैं उस हवाले से हम लूज भी करेंगे। तो हमें ऑब्वियसली एक बैलेंस रखना है कि हम छोटे कारोबार जो हैं उनको भी साथ लेके चल सकें और तायुन कर सकें उन इंडस्ट्रीज का जिन पे हमें जोर देना है। तो फिस्कल पॉलिसी के हवाले से हम मौजू जो है अभी छेड़ लेते हैं, और डॉक्टर साहब आई वुड लाइक यू अगेन बिगिन द डिस्कशन। जी डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? जी, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि हमें म्यूट कर दिया था। जो हमारी जिंदगी की कहानी है ऐसी कोई नई बात नहीं है, और जब हम एलीट कैप्चर की बात करते हैं तो हमें कोशिश की जाती है कि म्यूट कर दिया जाए। अलबत्ता मैं खुश हूं कि इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट में हमें कुछ गुंजाइश मिल रही है। देखिए, मैं अब जरा कुछ नए इश्यूज की तरफ आना चाहूंगा फिस्कल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। फिस्कल पॉलिसी के दो पहलू होते हैं, एक तो यकीनन टैक्सेशन है, और उस पे शब्बर जायदी तो हमारे मुल्क के एक नुमाया एक्सपर्ट हैं, और मैं भी थोड़ा बहुत इस पे काम किया है। और अलबत्ता जो मैं अब थोड़ा सा आप इजाजत दें तो खर्चों की तरफ बात करना चाहता हूं, जिसका सिलसिला आपने थोड़ा सा शुरू किया जब आपने एजुकेशन और हेल्थ की बात की। देखिए, सबसे पहले मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि पूरे साउथ एशिया के रीजन में पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे कम है, और वो
न सिर्फ बांग्लादेश से कम है, मगर नेपाल भी जो एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री शुमार किया जाता है उससे भी हम कम हैं। और सबसे बड़ी वजह कम होने की हमारा जो तालीम और सेहत का निज़ाम है और उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स हमने हासिल किए हैं वो सबसे बड़ी वजह है कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल बहुत कम है। तो लिहाजा जरा एक्सपेंडिचर साइड पे बात हो जाए। सबसे पहले मैं डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के जिक्र किया आपने कि इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद डेवलपमेंट गोल्स। देखिए होता ये रहा है कि पिछले 8-10 साल से हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में दो नुमाया सेक्टर्स रहे हैं। एक आपका पावर जनरेशन, जिसकी हमें बहुत जरूरत थी, इसलिए कि एक वक्त पे लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे हो गई थी। पिछले दिनों फिर से हमने एक छोटा सैंपल देखा था, अल्लाह का फजल है कि शायद वो ठीक हो गया है। और उसके नतीजे में हर साल हम तकरीबन 2% हमारी जीडीपी हम जाया कर देते थे। उसको हल किया तो एक अच्छी प्रायोरिटी थी, कामयाब हुई। मगर अब मसला ये है कि पाकिस्तान का रुझान कुछ, मैं समझता हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी, कुछ हद से ज्यादा, जिस तरह आपने टेलीकॉम का जिक्र किया शब्बर जैदी, हमारा रुझान कुछ हद से ज्यादा हाईवेज की तरफ है, मैस ट्रांजिट की तरफ है, ट्रांसपोर्ट की तरफ है। देखिए यकीनन हमारे पास मुनासिब रास्ते होनी चाहिए, मगर मैं समझता हूं कि मुल्क के फ्यूचर के लिहाज से हमने काफी इन्वेस्टमेंट कर दी है हाईवेज डेवलपमेंट, ट्रांजिट वगैरह में, खासतौर पे सीपेक के बाद। अब वक्त आ गया है कि वाज़े तौर पर वी हैव टू शिफ्ट आउट और हमें दो सेक्टर्स की तरफ जाना है जो बहुत ही जरूरी है हमारे आगे चल के तरक्की के लिए। नंबर 1, वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। अब इस बात पे मुझे इतना अफसोस है कि 40 साल से ज्यादा हो गए हैं हमने जबकि तरबेला डैम बनाया था, और उसके बाद में कोई बड़ा डैम हम बना नहीं पाए हैं। और मैं जब वजीर था, प्लानिंग का भी रहा हूं वजीर, उस जमाने में मैं काफी हद तक कालाबाग डैम की तरफ मेरा रुझान था, इसलिए कि वो ऑल सेड एंड डन निहायत एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव डैम था, मगर वो सियासी वजूहात की वजह से मारा गया। अलबत्ता अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली दफा कहा है कि हम अगले 10 साल 10 डैम की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह बाय 2030 वाटर रिसोर्सेज का जो हमारा इस वक्त ये बिकम ऑलमोस्ट वाटर शॉर्ट कंट्री, बेहतरी आएगी। पिछले 5-6 साल से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर में कोई इजाफा नहीं हुआ है, और आप कब तक प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे जब आपका क्रॉप एरिया में बड़ा नहीं आ रही बढ़ावट। तो एक तो प्रायोरिटी हैज टू शिफ्ट टुवर्ड्स वाटर रिसोर्सेज। नंबर 2, द प्रायोरिटी हैज टू शिफ्ट टुवर्ड्स a much better transmission and distribution system for power. ये दो चीजें ऐसी हैं, फेडरल गवर्नमेंट को अपना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का 50 से ज्यादा फीसद इन दो सेक्टर्स में लगाना चाहिए। इस वक्त वो मुश्किल से 20% लगा रहे हैं, और अभी भी सबसे बड़ा सेक्टर जो इस साल के पीएसडीपी में है, जिसमें हमने तकरीबन 50% इजाफे का कोशिश की है, वो फिर से एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। अब वक्त आ गया है कि आपके प्रोडक्शन सेक्टर्स, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट्स एफिशिएंटली ऑन फुल सप्लाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं फिर आ जाता हूं हुकूमतों की साइज के बारे में। आपको 2 स्टेटिस्टिक्स दूंगा तो आप शायद आपको एहसास होगा कि हम किस दलदल में फंस चुके हैं। पहले हम जिक्र किया करते थे कि डिफेंस का खर्चा बहुत है, अब अल्लाह के फजल से उसमें कमी आ रही है रफ्तार में। अब डेट सर्विसिंग सबसे ज्यादा खर्चे का आइटम है, तकरीबन 40% हमारे बजट खा जाता है। मगर 2-3 चीजें ऐसी हैं जिस पे अभी तक पूरी तौर पर बात नहीं हुई है। एक, आपके तनख्वाहें जो हैं
अगर आप फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिला लें तो 1.2 खरब रुपए, 1200 बिलियन रुपीस। अगर आप पेंशन मिला ले फेडरल एम्प्लॉयज, मिलिट्री और प्रोविंशियल एम्प्लॉयज, तो आपका बिल जो है सालाना 1000 अरब रुपए। और तीसरी तरफ आप उस पे आ जाइए सब्सिडीज पर। अब हमें पावर सेक्टर को भी सब्सिडी देना पड़ रहा है। पहली दफा बजट में तकरीबन 300 से 400 अरब रखे गए हैं। आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैव बिकम अ बॉटमलेस पिट फॉर मनी। पूरे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की कंटिजेंट लायबिलिटीज मीट करना, उनके लोन्स को सर्विस करना, उनके रनिंग डेफिसिट्स को कवर करना, सब्सिडीज देना वगैरह वगैरह। आपको ये सुन के खुशी होगी, अफसोस होगा कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज आर कॉस्टिंग द फेडरल गवर्नमेंट 950 बिलियन रुपीस। अब ये तीन चीजें नहीं आ गई हैं, पेंशन, तनख्वाहें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो आप मुझे बताइए कि जो हमारी अच्छी मासूम हुकूमत जो है, अल्लाह के फजल से नीयत बहुत अच्छी है उनकी, वो कह रहे हैं कि इस साल बजट डेफिसिट 6.3% पे आ जाएगा। मैं आपको इसी वक्त लिख के देने के लिए तैयार हूं कि ये 7.5 से 8% कम होने से रहा। मेरी तो दुआ है कि 8% तक रहे। तो नतीजा ये है कि फिस्कल पॉलिसी हैज टू हैव राइट प्रायोरिटाइजेशन ऑन द डेवलपमेंट साइड, ऑन सेक्टर्स दैट रिक्वायर immediate top priority, and current expenditures which have to be managed much better so that we can create a surplus for development. टैक्सेशन पे मैं इस वक्त इसलिए बात नहीं करूंगा कि मैंने एलीट कैप्चर और शब्बर जैदी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में भी समझा दिया हमें। तो वो निजाम जो है आपका टैक्सेशन का निजाम, सिर्फ एक स्टैटिस्टिक दे देता हूं एलीट कैप्चर का, कि हमारे एलीट कैप्चर को जो प्रिविलेजेस मिले हैं टैक्स लॉस पे, जिसको खत्म करने की कोशिश में शब्बर जैदी साहब बड़ी इज्जत से चले गए, और वो ये है कि 2400 अरब के तोहफे हमने अपनी एलीट को टैक्स लॉस, टैक्स ब्रेक्स, टैक्स कंसेशंस के थ्रू दिए हुए। जब तक पाकिस्तान में एक फेयर और प्रोग्रेसिव टैक्स निजाम नहीं आता, आप इन चक्करों से निकल नहीं पाएंगे। आपका बजट डेफिसिट में और बढ़ता जाएगा। पहले 4 था, फिर 6 हुआ, अब 8 या 9 है, और नतीजा ये कि यू आर गोइंग टू बिकम ऑलमोस्ट अ कंट्री व्हिच इज अनेबल टू मेक एंड्स मीट। इस बात पे मैं अफसोस से खत्म करता हूं अपनी बात। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Definitely, what a wonderful presentation you just kind of shed light on overall जो हमारे इस पर challenges हैं। शब्बर जैदी साहब, आप obviously you know you're an authority on taxation, और जैसे कि expenditure side पे काफी जबरदस्त तरीके से डॉक्टर साहब ने रोशनी डाली है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे जरूर थोड़ा एक्सपैंड करें ऑन द टैक्सेशन एंड द रेवेन्यू साइड, और बिलखुसूस ये जो हमारी रिग्रेसिव टैक्सेशन का जो मामला है उस पे आप अगर रोशनी डालें। मैं इस पे ना आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नेशनल एटीट्यूड समझाता हूँ, फिर हमें समझ आएगी कि हम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि बजट 12 जून 2021 को बजट आया, और आपने बेशुमार आर्टिकल, बेशुमार नोट्स, बेशुमार उसके ऊपर कमेंट्स और चीजें आपने देखी होंगी। मैंने आज मतलब जो स्टैटिस्टिक्स और जो बातें डॉक्टर साहब करते रहे और आज कर रहे हैं, ये मैंने बजट डिस्कशन में नहीं देखी। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमने एक्सपेंडिचर साइड ऑफ बजट को फॉर ग्रांटेड ले लिया। मतलब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप
पूरी जो हमारी डिस्कोर्स रही है 12 जून 2021 से लेकर आज जो भी आज 7 तारीख तक, उसमें मुझे कोई कंक्रीट एनालिसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर साइड नजर नहीं आई। मैंने एक हफ्ते पहले एक आर्टिकल लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में, और उसका नाम मैंने दिया था पाकिस्तान बजट। और उस आर्टिकल में मैंने फेडरल बजट और प्रोविंशियल बजट को मर्ज कर दिया था, और उसमें से मैंने ये ड्राइव किया था कि ये बताए, हम ये देखें कि हमारे पाकिस्तान क्या रेवेन्यूज हैं और हमारे खर्चे क्या हैं। और उसमें मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बिल्कुल एनालिसिस मुख्तलिफ था और डॉक्टर साहब का एनालिसिस बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस जगह हम आज खड़े हैं उसको देख के मुझे खौफ आता है। मतलब उस खौफ आने का मतलब ये है क्योंकि मैंने उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर निकाल दिया था। मैंने कहा चलो यार डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सपोज करें हम करेंगे ही नहीं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर निकालने के बाद हमारे पास 3000 का डेफिसिट था। 3000 का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में डेफिसिट था। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मैं उसके पूरी तरह एग्री करता हूँ। आपके ख्याल में मैंने उसमें हेल्थ और एजुकेशन को भी अलग कर दिया था, फेडरल का हो प्रोविंशियल का हो, सबका एग्रीगेट करके अलग कर दिया था। उसके अलावा जो मतलब आप हेल्थ एजुकेशन निकाल दें, डिफेंस निकाल दें, पेंशन निकाल दें और जो आपके डेट सर्विस निकाल दें, उसके बाद चारों गवर्नमेंट की रनिंग जो है, आपके ख्याल में आपको अंदाजा है कि उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट है 3000 बिलियन। 3000 बिलियन हम खर्च कर रहे हैं पांचों गवर्नमेंट को रन करने के लिए। अच्छा, आप उसके अंदर मजीद जाए ना, तो उसके अंदर मजीद जो है वो बल्क ऑफ देम इज सैलरीज। तो क्वेश्चन जो डॉक्टर साहब ने रेज किया बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने पूरी बजट डिबेट में, पूरी बजट डिस्कशन में, पूरी बजट के डॉक्यूमेंटेशन में ये बात नहीं देखी कि ये देखा जाए कि, और मेरी तकरीबन कैलकुलेशन ये कहती है कि सब्सिडी और जो आपकी जो स्टेट एंटरप्राइज हैं वो तकरीबन 1500 से ऊपर क्रॉस करेंगी। तो 1500 आपका स्टेट एंटरप्राइज पे चला जाएगा, 3000 आपका चला जाएगा स्टेट की रनिंग एक्सपेंडिचर पर। इस 3000 बिलियन चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेंड करेंगी ऑन दिस। अच्छा, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम के बगैर है। तो मैं तकरीबन इस बात पे कन्विंस्ड हो चुका हूं कि अब हमारा ठीक है, हम रेवेन्यू साइड को बहुत सीरियसली लेंगे, मगर अगर हमने अब एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर अपनी गवर्नमेंट्स को मैनेज नहीं किया तो मसला हल नहीं होगा। दूसरी बात मैं आता हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर। मैंने उसमें हेल्थ और एजुकेशन को अलग शो किया है कि हेल्थ का कितना खर्चा कितना बना है और एजुकेशन का खर्चा कितना बना है। मैं उसमें आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं यहाँ पर एक कराची में एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं जो कि सिंध गवर्नमेंट का से फंडेड होता है। मेरा इंस्टीट्यूट और सिविल अस्पताल बराबर है, बिल्कुल आपस में दीवार मिली हुई है। सिविल अस्पताल में 12 बजे के बाद कोई बंदा नजर नहीं आता और हमारे अस्पताल में 24 घंटे काम होता है। तो इसका मतलब ये है, जो हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है, गवर्नमेंट के पास काम करवाने की सलाहियत की कमी है। हमारी गवर्नमेंट्स काम नहीं करा पाती, अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देती हैं मगर वो डिलीवरी अवाम को नहीं मिल रही है। तो हम एक इस पैराडाइम में चले गए हैं कि जी पाकिस्तान में पैसे की कमी है इसलिए पब्लिक को इलाज नहीं मिल रहा, इसलिए एजुकेशन नहीं मिल रही। ये पार्टली सही है मगर ये बुनियादी तौर पर सही नहीं है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द एलीट कैप्चर, मैं सिर्फ इस पर इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जिसमें आप स्टेटस क्यू को टच करें, वो पॉलिटिकली इतनी मुश्किल हो गई है कि पॉलिटिकल साइड उसको मैनेज नहीं कर पाती। और जो डॉक्टर साहब बिल्कुल बात कर रहे हैं कि मैं भी उस प्रोसेस से गुजर के आया हूं, डॉक्टर साहब ने भी उस प्रोसेस को बड़े गौर से देखा है। अब वो जो आपका एक जिसे कहते हैं ना कि अनजाना खौफ है, जो डिसीजन मेकर है उनके दिमाग में एक अनजाना खौफ है कि अगर हमने कोई चीज को टच किया तो हो सकता है कि हमारा पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो जो एलीट कैप्चर है वो मजीद स्ट्रांग होता जा रहा है बनिस्बत इसके कि उसको वीक किया जाए। अब वो कौन सी फोर्सेस होंगी जो एलीट फोर्सेस को
हाथ डाल सकेंगी? दिस इज अ वेरी प्राइमरी क्वेश्चन। तो फिस्कल साइड पे हमारे दोनों मसले हैं। मैं अभी बैठा हुआ आप इस साल का बजट देख रहा था, आपको अंदाजा है कि ये बजट जो है उसके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो तकरीबन 550 हैं, 550 और उसके अंदर एक दो ऐसे हैं जिसके अंदर कोई 2000 आइटम है। अब वो किसी का ड्यूटी 5%, किसी की ड्यूटी 3%, किसी की 2%, किसी की 1%। अब ये क्या हुआ है, टेक्निकली मैं भी चेयरमैन एफबीआर रहा हूं, मुझे पता है कि वो किस तरह मैनेज होते हैं, क्या चीजें वो कैसे होते हैं, एक आदमी बैठ के वहां क्या कर सकता है। सो ये एक पूरा, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा ना, ये एक पूरा एक सिस्टम डिजाइन हो गया है, इसको अब हमें एक तरीके से अलग करना है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शबर ज़हीदी साहब। आई थिंक इतने मुख्तसर वक्त में इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन होना कमाल हो गया। मैं ख्याल से आई थिंक बोथ ऑन द एक्सपेंडिचर साइड और मैं ख्याल से जो सीधा बातों की तरफ इशारा किया है शबर ज़हीदी साहब ने, वो आई थिंक तस्वीर आप सबके सामने है। अच्छा, अब अगर हम सजेस्ट करूंगा कि वो मेरा आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, उसका नाम था पाकिस्तान बजट। मेरा ख्याल है वो शायद 1 जून आज वो 1-2 दिन के पहले आया है। उसमें मैंने नेशनल बजट बनाया है, ओवरऑल रिसीट एंड ओवरऑल एक्सपेंडिचर, और मैंने उसमें पीएसडीपी निकाल ही दिया है कि वो तो बात की बात है, पैसे कैसे आएंगे तो करेंगे। जी थैंक यू फॉर मेंशनिंग शबर साहब। इनफैक्ट मैंने वो पढ़ा भी था और आई थिंक इस प्रोग्राम के हवाले से और बसी आई थिंक जो ऑडियंस है हमारी, उसको जरूर लाइन बाय लाइन लाइफ है आर्टिकल को उसको पढ़ा जाए। और बहुत अच्छी आपने जो है मुख्तसर तरीके से इसको हमें सहल कर दिया हमारे लिए। अच्छा, अब ये देखें, फिस्कल जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करने के बाद अब अगर हम एक जो बहुत ही बड़ा अहम मौजू बन चुका हुआ है, वो है हमारा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से। बहुत हर प्लेटफॉर्म पे बड़ी डिस्कशन हो रही है और अक्सर औकात ये होता है कि हमारे यहाँ जो अहदेदार हैं वो अक्सर दे मेक इट साउंड सो इजी दैट एज इफ के जो आम ऑडियंस है वो समझती है कि कोई इतना कोई चैलेंजिंग शायद स्टेप या गवर्नमेंट नहीं लेने जा रही है। तो इस हवाले से हम इस सेगमेंट में बिलखुसूस जरा इस पर रोशनी डाल लेते हैं कि बेसिकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में जो सेक्टर्स हैं उसकी जो डिटर्मिनेशन होनी है या हमें असरटेन करना है कि मिसाल के तौर पे अभी हमारे को टेक्सटाइल और जो बाकी एक्सपोर्ट्स जिन एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड हैं उनकी ओवरऑल इस पर दुनिया में कितनी मांग है और हम कैसे उन मसनूआत की तरफ हमारा हमारा रुझान बढ़ना चाहिए कि जिनकी आलमी मंडी में जो है डिमांड ज़्यादा है। और फिर ऐसा जो सेक्टर के अंदर पेनिट्रेट करना हमारे लिए आसान भी हो। और फिर जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जैसे हम मॉडर्नाइज करेंगे चाहे कोई भी सेक्टर हो तो उसमें एक जॉब लॉसेस का पहलू सामने रहेगा। तो हमें यकीनन सेक्टर्स भी ऐसे चूज करने हैं कि जहां हम एम्प्लॉयमेंट गिवन सच अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मैनेज कर सकते। तो इस स्पेसिफिक सेगमेंट में डॉक्टर साहब और शबर साहब आप प्लीज रोशनी डालिएगा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ किस तरह से मुमकिन बनाई जा सकती है, क्या इसके बेसिक खतोखाल क्या होने चाहिए कि कोई उस हवाले से पॉलिसी तरतीब दी जा सकती है। जी डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ मुख्तलिफ वक्तों में एक्सपोर्ट लेड हुई है ग्रोथ, और सबसे रीसेंट हिस्ट्री जो है वो 2000 से 2010 की है, जबकि अल्लाह के फजल से हमारे एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ रेट रियल टर्म्स में 8 से 10% रहा और एक वक्त पे हम तकरीबन 24-25 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुके थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस 10 साल के दौरान पाकिस्तान के जो मार्केट शेयर था वर्ल्ड में वो उसी रफ्तार से बदलता रहा जिस रफ्तार से हिंदुस्तान और बांग्लादेश का बढ़ रहा था। 2010 के बाद हम पीछे चले गए। तब्दीली क्या आई है? अब सवाल ये पैदा होता है कि उस 10 साल में क्या चीजें ऐसी थी। एक तो वर्ल्ड जो ट्रेड है उसमें बड़ी बॉयंसी थी। फिर 2008 के बाद जब तेल की कीमत बढ़ना शुरू हुई तो आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड की गिरने लगी। हमने उससे पूरा फायदा उठाया था उस वक्त और अल्लाह के फजल से इजाफा हुआ था। मगर उसके पीछे 90s की एक कहानी है और वो ये है कि जब हम गलती से हुकूमत में आए थे
इसलिए कि हम सारी जिंदगी तो एक प्रोफेसर रहे, जब हमने मुझे खींच के निकाल दिया था, मैं वाइस चांसलर था कराची यूनिवर्सिटी का, मुझे नेशनलाइज कर दिया और हुकूमत में लेके चले गए। तो उस वक्त हमने ये किया, मैंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ कि 2 बड़े मराद मैंने अनाउंस किए थे। एक था टैक्स क्रेडिट फॉर बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट, हमने बड़े अट्रैक्टिव इंसेंटिव दी थी। और दूसरा हमने एक्सेलरेटेड या इनिशियल डिप्रिसिएशन या अलाउंस का प्रोविजन रखा था। और मैंने ये ऑर्डर्स दिए थे कि एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर खास तौर पे ये लिबरली अप्लाई होंगे, और तीसरे साइड पर आप 0 रेटिंग जो है उसका निजाम जारी रखें एक्सपोर्ट्स पर। हुआ ये कि there was a hump in investment in textiles, and that is what led to excess capacity which we could then use. आज unfortunately position ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कुछ नजर आ रही है। ये रवा साल जो है तकरीबन अभी जो खत्म हुआ है उसमें आपके एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, टेक्सटाइल्स में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है, मगर इजाफा कीमतों में है, क्वांटिटीज में नहीं है। और उसकी वजह यह है कि मार्केट्स में इस वक्त there was some space because of the COVID, तो हमने उसका फायदा उठाया है, मगर we don't have extra capacity। हमारे पास इतनी एडिशनल कैपेसिटी नहीं है कि हम अगले 3 साल में एक्सपोर्ट्स को 40 से 50% बढ़ा लें। The problem is the lack of investment in recent years in the export sector। और अब खुदा न खास्ता हुआ ये है कि शब्बर ज़ैदी साहब तो हमें समझा देंगे कि ये जो इंसेंटिव्स दिए गए थे 1-2 उनको भी वापस ले लिया गया है इस बजट में, बिकॉज IMF कहता है कि there should be no exemptions or concessions, so we withdraw them even on investment। बाकी चीजों पर रखे मगर इन्वेस्टमेंट पे हमने खास तौर पे डिप्रिसिएशन अलाउंस वगैरह विड्रॉ कर दिया। तो एक तो ये है exports have to have appropriate incentives। India and Bangladesh have run cash incentive schemes, cash payment schemes। Why do we have to have this refund ka nizam? Why can't we have determine upfront the input output coefficients and determine के textiles में 10% आपका sales tax refund होना चाहिए export पर, और at the time of receipt of sale आपको 10% शराफत से दे दें ताकि हमारा exporter को भागना ना पड़े। और there is a market, as Shabba knows, for cashment of refunds। What is this? Bangladesh has operated this for the last 40 years। So the point, Allah ke fazal se Pakistan was the ingenious country which came up with the most ingenious scheme for promoting exports in the 60s, commonly referred to as the bonus voucher scheme। India has tried to replicate it through its duty script scheme। हम इतने आगे थे थिंकिंग में, अब जाके बैठ गए हैं। और FBR जो कब्जा करता है रिफंडिंग पर, परेशान करके छोड़ देता है एक्सपोर्टर्स को। Incentives। The other thing is over obsession with textiles। I mean, of course, you have to realize that कम से कम मेरे जमाने में एप्टमा इतनी पावरफुल लॉबी थी कि वो फाइनेंस मिनिस्टर या प्लानिंग मिनिस्टर से मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं होती थी, वो दरवाजे खोल के अंदर आ जाते थे। शायद अभी भी ये हाल है, अब तो शायद शुगर वाले थोड़ा आगे चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कब तक टेक्सटाइल्स पे रिलाई करेंगे, 56% of your exports। दूसरी तरफ आपने जो इनपुट है टेक्सटाइल से उसको तो मार दिया है आपने, कॉटन को मार दिया आपने, कपास को खत्म कर दिया आपने। I mean, this is a mistake which even my first year undergraduate would not make, that the key input to your exports is virtually dying। आधी हो गई है आउटपुट कपास की। And today, you know what the price of kapas is? We are becoming hopelessly uncompetitive। Diversify, extend ये 6 इंडस्ट्रीज का जो ऑब्सेशन है उससे आगे बढ़े। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में 10 और आइटम ऐसे हैं जिनकी एक्सपोर्ट $2.5 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। उनकी तरफ जाएं, लिबरल इंसेंटिव्स दें,
SEZs को 100% टैक्स ब्रेक दें 10 साल के लिए, but for God's sake, the future has to lie in export-led growth. I'll stop here. I'm sorry I got a bit emotional. Thank you. Thank you so much, Dr. Saab. It's wonderful to hear from you. जी शबर ज़ैदी साहब। देखिए, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि हमने ओवर द टाइम एक्सपोर्ट पर जो फिस्कल इंसेंटिव थे वो तकरीबन ख़त्म कर दिए, और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल IMF का इंसिस्टेंस था कि एक्सीलेंट डेप्रिसिएशन ख़त्म करें, BMR ख़त्म करें, और उन्होंने कराया ये ख़त्म, वो उसके अपने इफेक्ट्स हैं। मेरा इसमें थोड़ा सा एक और एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कहता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको आज एक टेक्सटाइल की एक्सपोर्टर्स की आपको एक लिस्ट देता हूँ ना, तो आप ये देखेंगे कि तकरीबन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर में अगर आप 30 या 40 बड़े एक्सपोर्टर को उठा लेंगे तो तकरीबन 70% ऑफ द एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, उसमें मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और देखता हूँ, वो जो 50 या 60 बड़े एक्सपोर्टर हैं, मैंने उनकी जो सेकंड जनरेशन है, क्योंकि उनमें से काफ़ी हद तक मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई जानने वाले हैं, जब काम करता हूँ, उनमें से जो सेकंड जनरेशन है उनका अर्ज टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो चुका है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए, अल्टीमेटली एक तो पॉलिसी साइड हो गई ना कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे कि वो इन्वेस्टमेंट करे। दूसरा, ये मैं अगर एक बड़े एक्सपोर्टर का बेटा हूँ और मेरे वालिद साहब की उम्र 70 साल की हो चुकी है, 75 साल की हो चुकी है, और मैंने अब यहाँ काम करना है, तो मैं क्या पाकिस्तान में बैठ के, फैसलाबाद में या सियालकोट में बैठ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा? मैं ये बात कर रहा हूँ, शायद ये थोड़ी सी आपको अजीब लगे, मगर मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरी जिंदगी का, मैं इसलिए आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो जो बच्चा, नई जनरेशन आई है, somehow the other, because of the political instability, because of the accountability codes, because of the cases, the way that things are handled, because of the over regulations, and many other factors, and for the reason that in Pakistan, if somebody is rich, he is considered to be corrupt. This is an unfortunate part in this country. So जो मैंने ये देखा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका जो इंसेंटिव है टू री इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, वो नहीं है जो कि वो होना चाहिए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैं बेशुमार एक्सपोर्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने आपको हैज किया हुआ है बाय इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इन दुबई, एंड दे आर लूजिंग मनी, बट दे फील कि यार हमारा पैसा वहां पाक रहे, हमें एक सिक्योरिटी दी जाए, हमें एक चीजें दी जाए। और ये बल्कि मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं एसेट डिक्लेरेशन लॉ लाया था, वो सिर्फ इसलिए लाया था कि मैं पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस देना चाहता था कि पाकिस्तानियों को ये कॉन्फिडेंस आए कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। आपको ये थोड़ा बहुत जो इस वक्त नजर आ रहा है, ये जो पॉजिटिविटी नजर आ रही है, ये टेक्निकली कोविड रिलेटेड है, क्योंकि अब उनके पास वहां पे ऑपरेट करने के ऑपरेशंस की इंसेंटिव्स कम हैं, तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात जो मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये है, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रियलिटी है, उसमें पाकिस्तान में दो एरियाज हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर सकते हैं। एक है फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, ये कोई 80-90 मील का एक ट्रायंगल है जो कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री को कैरी करता है। और इसी तरह का एक ट्रायंगल आपका कराची में है, कराची शहर को आप समझें। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो पिछले 30-40 साल में जो कराची वाली साइड है वो काफ़ी डिस्टेबलाइज रही है, और आपको जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो वहाँ नहीं मिली है। अच्छा, इन दोनों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, उनकी अलग मैकेनिज्म है, इनकी अलग मैकेनिज्म है, मगर जब तक आप दोनों एरियाज को साइमल्टेनियसली डेवलप नहीं करेंगे, आपके पास कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा।
तीसरी बात, जो आखिरी बात है, वो ये है कि इस दफा गवर्नमेंट ने कुछ पहली दफा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे काम किया है। हमारे मुल्क में हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे इतना कंसंट्रेट किया है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हमने तकरीबन इग्नोर कर दिया। कोई एक पॉलिसी गाइडलाइन, कोई एक सिस्टम, एक तरीका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बिल्कुल पाकिस्तान से खत्म हो चुका था। जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, जो हमारा जो हम अपनी फील्ड में जो लोग निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको, क्योंकि मैं दो चीज़ों में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जो दुनिया में बीपीओ का बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है, या अकाउंटिंग का काम है, या आईटी वाला काम है, इसमें पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल है। अच्छा, छोटे छोटे लोग बेचारे काम करते हैं, उनकी कोई कंपनीज नहीं है, कोई उनको स्ट्रक्चर नहीं है, कोई आईटी पार्क नहीं है। मैंने अभी तक पाकिस्तान में कोई प्रॉपर आईटी पार्क नहीं देखा। इंडिया ने 1990s में पूरे मुल्क में आईटी पार्क्स डेवलप किए थे, जिनकी वजह से आज उनकी आईटी की एक्सपोर्ट काफ़ी आगे है। बेंगलोर में उनका है, हैदराबाद उनका सिटी है, और उन्होंने ये चीज़ डेवलप की। अब प्रॉब्लम जो हमारी आती है वो ये आती है कि हम इस चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाए, और हमें एक जिसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटेजिक रिजल्ट नहीं मिल सका। मगर मैं डॉक्टर साहब की एक बात से एक चीज़ रिलेट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर एक्सपोर्ट को आपने बढ़ाना है तो आपने कॉटन को भी साथ लेके चलना है। मुझे ये, मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आती कि आज इस्लामाबाद में इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को कौन देख रहा है। और अगर आप मुझे पूछें कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कॉटन को साथ देखते हुए कौन समझने की कोशिश कर रहा है, मैंने जितनी मीटिंगें अटेंड की, जितनी मैंने वहां बैठ के देखा, तो वो एक आदमी है, वो अपने अपने थाने का इंचार्ज है, एक और अपने थाने का इंचार्ज है। जो इंटेग्रेटेड कॉन्सेप्ट है वो तो मुझे डॉक्टर साहब कहीं नजर नहीं आया। मैं आपसे सवाल आपको, अगर मैंने मुझे जो एक्चुअली जो मुझे इरिटेशन होती थी वो ये होती थी कि यार कि अगर आप टेक्सटाइल चाहते हैं तो कॉटन भी चलाना पड़ेगा, कॉटन चलाएंगे तो सीट चलाना पड़ेगा, सीट चलाएंगे तो और चलाना पड़ेगा, इरिगेशन करना, तो ये सब आपस में इंटेग्रेटेड है। Exactly. मगर जो मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर है वो उसका अपना ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो एक डिसइंटेग्रेशन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी है, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का इस वक्त। क्योंकि जो बहुत बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहब बात करें, जी। तो जब तक हम प्लानिंग कमीशन के चार जो थे फर्स्ट 4-5 ईयर प्लान में रहे, हमने कोई बुनियादी गलती नहीं की। मतलब हम ठीक है, एक पैराडाइम था, मगर वो चीज एक सिस्टम में चल रही थी। तो जब से हम इस 4-5 ईयर प्लान से बाहर आए हैं, हमारा कोई, उर्दू में कहते हैं वाली वारिस नहीं है कि हम किस चीज में क्या करने जा रहे हैं। थैंक यू जबर साहब। मैं काफ़ी महसूस हो रहा हूँ सारी गुफ्तगू से, और मुझे उम्मीद है कि सारी ऑडियंस को भी जो दर्द दिल है हमारा वो महसूस हो रहा होगा। मगर अभी चैलेंज ये है कि जी दामन वक्त में हमारे पास गुंजाइश ज़रा कम है, और मेरी ख्वाहिश होगी कि अब इस फाइनल सेगमेंट को हम एक तरह से कंक्लूजन बनाएं, और बुनियादी तौर पे डिस्कशन को हम यहाँ पे क्लोज करें। रही ना ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। तो अब ये जो फाइनल सेगमेंट है इस पे हम जरा ये और ये लेते हैं कि ये जो सारा इतने बड़े बड़े हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, तमाम ही हवालों से, ना सिर्फ मईशत के हवाले से, सोशल इशूज हैं और बेपना मसाइल हैं। तो इसमें आप दोनों क्या समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन मॉडल जो है वो उसकी क्या शक्ल होनी चाहिए? मसलन कोई सियासी पार्टी आप समझते हैं कि उसमें एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है कि ये इसको लीड करेगी, या ये बाकायदा तौर पे इसको आर्मी फुल फ्लेज एक कोई कमेटी बिठाए वो एक्सपर्ट्स की, और उस तरह से, या जो टेक्नोक्रेट मॉडल एक कहा जाता है, वो आप समझते हैं ज़्यादा कामयाब है, या इसको कोई आउटसोर्स कर लिया जाए? मतलब इस मसले का क्या हाल है? फिर देखिए जो हदीस है कि नमालो बिन्नियात, ये अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि नियत नज़र आ रही है, और इस बजट में चलिए एक तरफ हुकूमत से अगर ये तनकीद होती कि जी अगर तो बिल्कुल दूसरे नौयत का बजट होता कि ये तो IMF का बजट बना दिया इन्होंने, तो अब वो तनकीद हो रही है कि भाई ये तो अब आपने बजट हवा में बना दिया है, और ये तो पता नहीं एग्जीक्यूट हो सकेगा नहीं हो सकेगा। तो वो सब मसाइल अपनी जगह है। पर इससे कतई नज़र अगर आप देखें तो दुनिया में बेपनाह सक्सेस मॉडल, मतलब जापान, चाइना और
मसलन अगर आप करीब में मलेशिया देख लें, उससे हट के और बहुत सारे आपको छोटी छोटी बेशुमार मिसालें मिल जाएंगी। अफ्रीकन कंट्रीज में घाना देख लें आप, यूरोपियन यूक्रेन है, मतलब बहुत सारे आपको अच्छे सक्सेस मॉडल्स नजर आएंगे। एजुकेशन और हेल्थ के अंदर भी बांग्लादेश, ईरान और टर्की में हालिया सालों में जो कारकर्दगी दिखाई इन ममालिक ने, वो हमारे सामने है। तो अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन में मुख्तसरन अगर आप थोड़ा रोशनी डालिए और हम फिर अपनी आंखें को आप समझिए पूरी ये लेते हैं कि इसका क्या हाल है और किस तरह से इसको जो है अमली जामा पहनाए। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले देखिए, जो अभी तक डिस्कशन हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही जानदार डिस्कशन हुआ है और हमने काफी फंडामेंटल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान नीड्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या अगर आप इसको मोर फोकस करना चाहें तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जो इंसाफ पे बेस्ड हो और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, एंडाउमेंट्स हैं और जो हमारे प्रायोरिटीज होनी चाहिए उनको फुली रिफ्लेक्ट करेगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे होगा और किस तरह इसको हम कर पाएंगे। देखिए, जिस तरह मैंने पिछले एक हफ्ते में एक चीज बहुत अच्छी देखी और मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने साफ कह दिया है, एब्सोल्युटली नॉट। इस तरह की पोजीशन लेकर एक कंसेंसस अक्रॉस द डिवाइड इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट, आप एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कम से कम ये जो एलीट कैप्चर का पहलू है वो कम हो जाए, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रैशनलाइज हो जाएं और फोकस करें अपने की एक्टिविटीज पर। ये बस एक ड्रीम है और मगर सवाल ये पैदा होता है कि विच पावर स्ट्रक्चर विल अलाउ दिस टू हैपन। इस पे मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अलबत्ता जो गुंजाइश मौजूद है वो ये है कि आपके आइन में कम से कम 18वीं तरमीम के बाद में 2 लिस्ट्स मौजूद हैं। एक है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1, दूसरा है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2। और अगर कोई चीज इन 2 लिस्टों में नहीं है तो इट इज assumed बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडुअलिटी दैट इट गोज टू द लोअर गवर्नमेंट। मगर प्रॉब्लम यह है कि आपके निजाम में फेडरल गवर्नमेंट तकरीबन हर चीज में घुसी पड़ी है। अभी भी 40 डिविजन्स। बाबा, मैंने जब डाउन साइजिंग कमेटी का मैं चेयरमैन था 90 के दिहाई में, तो मैंने बड़े मुश्किल से 12 डिविजन सैंक्शन किए थे कि ये होना चाहिए। तो हुआ ये कि बोर्ड की मीटिंग में मुझे तकरीबन उसी वक्त निकाल दिया गया था कि डॉक्टर साहब क्या हमारी नौकरियां लेने के चक्कर में हैं आप, तो लिहाजा हम आपको निकालते हैं। सो देयर इज ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन द ब्यूरोक्रेसी आल्सो। मुझे आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि लिस्ट 1, लिस्ट 2 में देयर इज नो मेंशन ऑफ higher education being the responsibility of the federal government barring regulation and foreign students। मगर HEC हमारा फेडरल लेवल पे सारा फाइनेंसिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और provinces are doing nothing, very little। So you have to have a rational allocation of functions respecting the Constitution of Pakistan based on the principle of subsidiarity। And our biggest failure has been we have not gone to the 3rd level। एक चीज मैं तारीफ करना चाहता हूं मुशर्रफ साहब की हुकूमत की, और वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मॉडल निहायत कामयाब था। कम रिसोर्सेस के बावजूद उस वक्त एजुकेशन और हेल्थ में जो तरक्की आई थी उसकी रफ्तार आज तक हम फिर वापस नहीं हासिल कर पाए। यू हैव टू डिवॉल्व टू द लोएस्ट लेवल। पार्टिसिपेशन का पहलू हो, लिंकिंग ऑफ टैक्सेस विद बेनिफिट्स। द 18th amendment article 40A has to be immediately implemented। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया और अभी तक गवर्नमेंट वापस नहीं आई पंजाब में। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 हमारे आईनी इदारे हैं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और दूसरा है आपका
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स। इनको हमारे आइन जो बनाया था उनका एक बहुत अहम रोल था टू गाइड and monitor the implementation of policies and reforms, and to ensure that in the discharge of Federal Legislative List 2 functions, the Council of Common Interests ensures that there is not too much friction between the provinces or between the provinces and the Federation. ये दो इदारे आज तक काम ही नहीं किए। साल में खींच खांच के एक मुश्किल पिछले मर्तबा पॉपुलेशन सेंसस के लिए सीसीआई की मीटिंग हो गई बस, और पिछले दिनों एनुअल प्लान को अप्रूव करने के लिए नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई। इट इज सपोज्ड टू मीट क्वार्टरली। मेक देम इफेक्टिव बॉडीज एंड make the planning commission the secretariat to these two bodies. Only then will we get the planning commission to play the role which Shabbar Zaidi Saab wants them to play. And we should, in fact, I totally agree with him, go back to medium-term planning, 3-year, 5-year, but for God's sake, plan and focus on exactly what reforms you have to implement based on passage by the NEC or CCI, and these two bodies should implement the implementation, should ensure the full implementation of these reforms. Let me conclude by saying that at the fag end of my life, I came back to Pakistan even though I had a tenure track position at MIT offered to me. 40 years later, I still wonder whether we can take our beloved country up again. It has so much potential. मैं आपको बताऊं, हमारे शागिर्द एक से एक टैलेंटेड बच्चा मौजूद है, बच्ची मौजूद है। एक निजाम चाहिए, खुदा के लिए वो निजाम हम अपने लोगों को दें। इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तेजी से इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। Thank you very much, and I suppose we can go home now. Thank you. शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी जबर साहब आप देखिए, मेरी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह कंक्लूड कर दिया है, मेरी जरूरत नहीं है, मगर मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रैक्टिकल साइड पर हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें ये जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, अच्छा है या बुरा है, इसी के साथ जिंदा रहना है, और यही लोग ओवर द टाइम इम्प्रूव होंगे, मगर आप इस सिस्टम को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब इसमें जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि जो हमारा पिछले 20 साल से, पिछले आई वुड से इवन मोर देन दैट, जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। एक ज़माना हमने वो देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी और वो लाहौर लैंड नहीं कर सकती थी, नवाज शरीफ साहब कहते थे लाहौर में लैंड नहीं करें। फिर हमने वो ज़माना देखा कि आपस में तकरीबन गाली गलोच पे हम चले गए। फिर हमने वो ज़माना देखा कि, तो मेरा व्यू ये है कि सर, अगर आपने एक कंसेंसस, अगर आपने टेम्परेचर्स डाउन नहीं किए तो उसका फ़ायदा कुछ इलीट को हो जाता है, कुछ ब्यूरोक्रेसी को हो जाता है, मगर पाकिस्तान का अल्टीमेट आम शहरी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि स्टेक होल्डर पाकिस्तान की इकोनॉमी का नवाज शरीफ भी है, स्टेक होल्डर बेनज़ीर भुट्टो भी हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं, और हम सब भी हैं। तो अल्टीमेटली सवाल ये कि आपको इस टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने ज़ाती इख्तलाफात, पॉलिटिकल इख्तलाफात, अपने ज़ाती इशूज़, करप्शन के इशूज़, ठीक है वो भी कभी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर हम कोई सेकेंडरी व्यू नहीं ले सकते। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आर्गुमेंट से। अभी आप ले लें फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टील। अभी जब तक पार्टी अपोजिशन में होती है, वो जब पार्टी पावर में होती है वो कहती है प्राइवेटाइज कर दो, जब वही पार्टी अपोजिशन में जाती है वो कहती है प्राइवेटाइज नहीं करें। तो ये जो हम लोगों ने डबल स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए हुए हैं पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए इकोनॉमिक इश्यूज से पाकिस्तान के, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस चीज है। देखिए फॉर आर्गुमेंट सेक अगर हमारा जो
हमारा जो अपोजिशन का नुमाइंदा है, अगर वो पब्लिकली बैठ के विदाउट गोइंग इनटू द फैक्ट्स, विदाउट गोइंग इनटू द थिंग्स, विदाउट गोइंग इनटू द बैकग्राउंड, अगर वो कह दे कि ये बजट बिल्कुल जाली है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, डॉलर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, उसका अपना व्यू हो सकता है, मगर आप ये रियलाइज करें कि उनके इन स्टेट्समेंट का, उनके इन चीजों का एक माहौल पर और एक जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसका क्या असर पड़ता है, और फिर उससे वही होता है जो हमारा आज का प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान का जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में, अगर डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दें तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो यंगस्टर है, चाहे वो गरीब आदमी का बच्चा हो, चाहे मिडिल क्लास का बच्चा हो, या वो इंडस्ट्रीज का बच्चा हो, उसको, वो पाकिस्तान को अगले 20 साल में कहाँ देख रहा है? क्या वो समझता है कि उसको आगे 20 साल में यहाँ इन्वेस्ट करके यहाँ रहना है? वो जो एनवायरनमेंट है, वो हमारे जो रोजाना का टेम्परेचर है, जिस तरीके से हम फेसबुक पे डील करते हैं, जिस तरह हम लोगों के इज्जतों की धज्जियां उड़ा देते हैं, जो हम उसके बिल्कुल नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं, और इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द लॉन्ग टर्म बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, जो कि बुनियादी मसला है इस कंट्री का, वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। मैं फिर आपको रिट्रेट करता हूँ, क्या आप मुझे बताइए, क्या असेंबली की किसी डिस्कशन में ओवरऑल खर्चे पे बात हुई? किसी ने नहीं की। किसी को ये नहीं पता कि ओवरऑल खर्चा कितना है, किस हेड पे कितना खर्चा हो रहा है। तो ये सारी चीजें वो हैं कि जी इस पे टैक्स लग गया, इसकी कीमत बढ़ गई, प्याज की कीमत कम हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है, वो रेलेवेंट चीजें हैं। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, पाकिस्तान की मईशत आज, मैं नहीं कहता कि आज ये आईसीयू में है। पाकिस्तान की मईशत में बीमारियां हैं, मगर बीमारियां ऐसी हैं जो क्योरेबल हैं, मगर इसको अगर हमने बहुत जल्दी अपने इसको करेक्शन मेजर नहीं किया, और करेक्शन मेजर जो है वो सिर्फ कंसेंसस है अमंग दी स्टेक होल्डर, तो फिर ये आईसीयू की तरफ जाने की खतरा है इसके अंदर। डॉक्टर पाशा और शबर साहब, दिल की गहराइयों से आप दोनों को बहुत बहुत आई वुड लाइक टू से थैंक यू। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। इन कंक्लूजन आई थिंक दो मुख्तसर बातें मैं कहूँगा और यहाँ पे हम डिस्कशन को एंड करते हैं कि जी, एक तो अखज़ इस पूरी डिस्कशन से हुआ वो ये हुआ कि जी, एक तो प्लान जो हैं दोज आर लेस इम्पोर्टेंट देन प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, और हम बज़ाहिर तो प्लानिंग फैलेसी का शिकार हैं, मगर इस हवाले से हमें काफ़ी गौर व खोज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जितनी कड़वी बातें हमने प्रोग्राम में कर दी हैं, तो इस हवाले से मैसेज ये जा रहा है कि जी इकोनॉमिक इमरजेंसी की ज़रूरत है, और जिस रफ्तार से हम काम कर रहे हैं उसमें मज़ीद जद्दत आनी चाहिए। और ऑब्वियसली प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम सब पुरुमीद हैं, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उस हवाले से बेइंतहा ब्राइट हो सकता है, बेइंतहा पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स हैं कि अगर हम अपनी सिमत को मज़ीद दुरुस्त कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।